Assalamu alaikum to all of you. This is Almas Abbasini. Right, so there is some echo noise. I would like to welcome you all in today's webinar. Yeah, please hang on for a while. Okay, let me check the sound. Hello, Assalamu alaikum to all of you. Hello, Assalamu alaikum to
Hello, testing 1, 2, 3. नहीं अभी इक्वल ही हो रहा है Hello, testing 1, 2, 3. Hello. Hello, testing 1, 2, 3. शादी हो रही नहीं हो रही नहीं. Hello. Check this all right. मैंने वेट का मैसेज डाल दिया है. अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए. Hello, testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Yes. All right, so let's begin the webinar. This is Almas Abbas-Ali, and I welcome you all for the webinar on the SVL Bridging the Gap. And this is the last webinar of the series of Bridging the Gap webinars, which ACCA Pakistan has conceptualized and is offering you to help you not only to understand the practical relevance of the SVL examination, but at the same time, it is also going to help you for the understanding of the integrated case study, which is assessed in the SVL examination. And this was the main purpose of coming up with Strategic Business Leader exam in the ACCA curriculum. I have the presenter today with me who will be introduced shortly. But as I said that this is the aim of the today's webinar, just to ensure that when you are preparing for the SVL examination, this session is going to broaden your horizon and overall understanding of the topic, which is the corporate governance, scopes and structure. And I have with me the presenter of today's webinar, who is Muhammad Awais Masood. He is an CFO and Company Secretary, Advanced Pakistan Microfinance Bank Limited. Awais is an ACCA member who has had experience of 14 years, and he has enjoyed leadership positions at various organizations. And some of the organizations, I can share the name here with his permission, which is the Park Oman Asset Management Company, House of Habib, and Carrefour. And I'm sure you all are familiar with these big organization names. So before I request
Awais to take the floor and share his overall insight, which is practical, which is industry related, about this topic of the corporate governance. I would like to share a couple of housekeeping announcements, which are that, of course, we have muted you all, but you have the opportunity to write down any question wherever you have about this topic. So you have the chat section with you at the moment, which you can see on your screen on the right side. Please write down your question, and in the question and answer session, I will be happy to take your questions, read those questions loudly, and I would request Awais to answer those questions. All right, the other announcement is that if during the session, if you feel that you are unable to hear the voice or see the video, and if that is related to your internet connection, of course, we and including you are relying on the internet bandwidth. So please, if that happens 3 or 4 times, so I would recommend that you cancel your connection, cancel your screen, and then rejoin it again. If it is from our end, then of course we would inform you in advance. So with this, please take the maximum benefit of today's session and do ask any burning question related to the topic. If you are working in the organization and if you have an idea about the corporate structures and all that, if you then need to ask any question, so please do ask. And because normally we don't get hold of senior ACCA members and senior leaders from the industry. So this is the prime opportunity for you to take the advantage. And with that, I would sincerely thank Awais for his valuable time. And he's told me that he's to go back to his office. So that is really appreciable. With this, I would now request Awais to please take the floor and share his overall experience and guidelines with you about the topic. So over to you. Thank you very much. Thank you, Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the participants. So let's start the presentation. So ये पहली स्लाइड में बेसिकली आप देख सकते हैं ये कंटेंट्स हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे. पहले जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, फिर हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस वजह से स्टार्ट हुई, किस तरह इवॉल्व हुई, फिर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड की क्या जरूरत महसूस हुई, क्यों डेवलप हुआ, फिर हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान, फिर टाइप ऑफ अप्रोचेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोच जो करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोच है पाकिस्तान के अंदर, उस पे हम डिस्कस करेंगे उसको, उसके जो एवोल्यूशन रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि आप आई थिंक 1967 से लेकर जस्ट चल सकते हैं, उससे लेकर अब तक क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, एंड देन फिर इन द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन various positions of the company, which includes directors of the company, officers of the companies जो C level posts होती हैं, खासतौर पर उनकी बात होगी, and the auditors of the company. तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी. ओके जी, तो फर्स्ट स्लाइड है जी, what is the corporate governance? In nutshell, corporate governance is the system by which the companies are directed and controlled. Okay. अब डायरेक्टेड एंड कंट्रोल जो होता है बेसिकली कंपनी को एक तो कंपनी की अपनी मैनेजमेंट होती है जो बेसिकली कंपनी को चला रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उस मैनेजमेंट के ऊपर उसके डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को गवर्न करते हैं, जो उनको डायरेक्शंस देते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. सो बेसिकली ये एक एजेंसी एजेंट होते हैं वो शेयर होल्डर के, तो एक एजेंसी ओनर एक रिलेशनशिप बन रहा होता है. तो ओवरऑल कंपनी को किस तरह चलाया जाएगा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो उसको डील कर रही होती है. तो द मेन टॉपिक्स दैट आर
covered under corporate governance are how the power is divided between the board and the shareholders. So जैसे आपको बताया कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को गवर्न करते हैं, उनको वो मैनेजमेंट को ओवरसी कर रहे होते हैं उनको, लेकिन शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनका एक्चुअल पैसा लगा हुआ होता है कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी में उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती, उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक आप जैसे कहेंगे एक एनुअल जनरल मीटिंग की हद तक ही होती है यूजुअली, जिसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो यूजुअली अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें इसमें जो साल के फाइनेंशियल्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी। सो पावर बिटवीन बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कवर होता है। इसको बेसिकली इस चीज की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट भी करती है। कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर्स दी हुई हैं उसके अंदर वो उसको गवर्न करती हैं। उसके बाद आप अगर आप इसके मजीद हम इसको डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे आगे। फिर है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू द मेंबर्स। ये भी उसी ये मोर और लेस ऊपर वाले ही सेक्शन का पार्ट है जिसमें बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं ऑब्वियसली वो अकाउंटेबल होते हैं उस डिसीजन के, वो मेंबर्स को अकाउंटेबल होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल होते हैं, वो रेगुलेटर को अकाउंटेबल होते हैं। सो ये पॉइंट भी हम आगे चल के इसको इन डेप्थ में इसको देखेंगे। उसके बाद है द रूल एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग डिसीजंस। रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं जी ये कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम के अंदर डिफाइन होते हैं कि क्या तरीकेकार होगा, डायरेक्टर की क्या पावर होगी, चेयरमैन की क्या पावर होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की क्या पावर होगी, ऑफिसर की क्या पावर होगी। तो ये आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम के अंदर होते हैं। उसके अलावा जो रेगुलेटर्स होते हैं जो भी डिफरेंट रेगुलेटर्स होते हैं डिफरेंट मार्केट के लिए, वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो है बाद में अमेंड भी कर रहे होते हैं और वो उसको इस तरह सर्कुलेट भी कर रहे होते हैं। यहाँ दो चीजें मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता चलूं। अब हम रेगुलेटर की अगर जैसे बात हुई है तो प्राइमरली अगर आप बात करें जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर की सब बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में यूजुअली दो रेगुलेटर्स होते हैं। एक स्टेट बैंक है रेगुलेटर और एक है SECB। कुछ कंपनी बैंक्स, DFIs और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, इनको गवर्न करता है स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर। और दूसरे जितने भी NBFIs हैं जिनके अंदर आप इंश्योरेंस कंपनीज ले लें, आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ले लें, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लें जिसमें आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो भी SECB ही गवर्न करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं। तो ये दो रेगुलेटर्स हैं यहाँ पे हमारे जिनका हम आगे चल के मजीद डिस्कस भी करेंगे और इनकी इम्प्लीकेशन जो implication of a regulator on the entities इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट है ये the provision of control for the companies। ये भी रूल्स ही होते हैं जो वक्तन फवक्तन SECB और स्टेट बैंक जो है वो डिसमिनेट कर रहा होता है for the companies to follow। Moving to the next slide, the history of corporate governance। ओके जी, देखिए हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही है कि जैसे कि आप लोगों ने सब देखा होगा कि सुना होगा ऑब्वियसली एनरॉन का जो वाकया हुआ था, ये जो वर्ल्डकॉम का जो वाकया हुआ था, ये बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स थे जिसकी बेसिस पे जिनकी वजूहत की बिना पे
जो अमेरिका के, अगर जिस तरह ये अमेरिका की एग्जाम्पल ली, तो अमेरिका के रेगुलेटर्स ने एक्शन लिया। पहले तो उन्होंने रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि ये इस तरह के इंसिडेंट्स कैसे हुए, क्यों हुए, और उसकी बेसिस पे उन्होंने फिर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस पास की, ताकि वो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है फ्यूचर में दोबारा ना हो। जैसे कि आप जैसे द कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो 1929 की जो यूएस की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट क्रैश था, जिसमें काफी सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों का जो नुकसान हुआ था, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वहां से स्टार्ट होती है, मतलब उसकी इम्प्लीकेशन। उसके बाद जिस तरह 2001-2002 के अंदर एनरॉन, वर्ल्डकॉम, ग्लोबल क्रॉसिंग, आर्थर एंडरसन, ये जो सारे क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से यूएस स्टॉक एक्सचेंज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसको इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका में सर्वेलेंस ऑफिसर्स एक्ट 2002 आया, बेसिकली जिसने जो 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 प्रॉब्लम्स हुई थी एनरॉन, वर्ल्डकॉम और ये आर्थर एंडरसन की वजह से, उन ऐसी प्रॉब्लम आगे ना हो, इस वजह से उन्होंने ये रेगुलेशंस और ये एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया। साथ ही हम अगर यूके की मिसाल लें, तो जिस तरह यूके में आप देख सकते हैं कि 1970 और 71 के अंदर उनके कॉर्पोरेट लैप्सेस हुए थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस हुए थे। 1970 के अंदर बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, बीसीसीआई, जो हम सभी जानते हैं, उसका जो क्राइसिस हुआ था। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर आप यूके की बात करें तो 1970s में इन इंस्टेंसेस की वजह से उसको आप उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं और वहां से स्टार्ट हुआ था। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें, रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, अच्छा इसमें हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की अगर हम बात करें, तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का मकसद ये है कि जी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनकी 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 हेल्प की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए ये जो मैल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उनसे। ओके, आप इन्वेस्टर्स को किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए होती है? जैसे इन्वेस्टर्स जो है उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनीज की, उनके फाइनेंशियल डाटा की, जिसकी बेसिस पे वो उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें, या अगर उन्होंने अपने पैसे निकालने हैं तो वो अपने शेयर्स बेच सकें। उसके लिए उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती, टाइमली और रिलायबल। दूसरा ये होता है कि जी इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए होती है जी अगेंस्ट अनएथिकल और डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय द कंपनी मैनेजमेंट। इसमें आप सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जी इनसाइडर ट्रेडिंग एक चीज होती है। एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब आप ये ले सकते हैं कि कोई एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को या कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को पता है, और उसकी बेसिस पे वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं। इससे पहले कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स में कर लेते हैं। सो फिर बाद में जब वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज होती है, तो शेयर, उस कंपनी की शेयर के प्राइसेस जो होते हैं वो उसके हिसाब से बढ़ते या घटते हैं। तो बेसिकली क्योंकि इन लोगों ने पहले ही कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट कर ली होती, तो जो भी गेन या लॉस आना होता है ये पहले ही शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए होते हैं, तो या डिसइन्वेस्ट करके बैठे होते हैं, तो ये वहां से अपनी पर्सनल गेन्स बना लेते हैं। तो इससे आम जो इन्वेस्टर होता है उसको ऑब्वियसली लॉस होता है। सो
ये वन ऑफ द रीजन है जिसके लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाया और इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा, दुनिया के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलप कंट्रीज के अंदर होते हैं, जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स, बेसिकली मॉर्गन स्टैनली का एक है इंडेक्स। तो वो इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज को उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मार्केट डेप्थ, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे उनको रेट करता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो फ्रंटियर इंडेक्स में मॉर्गन स्टैनली ने उसको प्लेस किया हुआ था, उसको प्रमोट करके उसको डेवलपिंग कंट्री इंडेक्स के अंदर अपग्रेड कर दिया था। सो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इस तरह की इंडेक्स की बेसिस पे पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस नहीं चल रही होंगी और वहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका पैसा डूब जाता है, तो वहाँ पे इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस उन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। सो ये भी एक बहुत बड़ी एक वजह होती है कि जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो अपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनल, उनकी इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर। ओके, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल के देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाकिस्तान। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ जो है ये एक्चुअली फॉल करता है 6 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले आ गई थी कंपनीज एक्ट 2017, इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था जो कि 2017 में कंपनीज एक्ट हो गया। उसके बाद आ गए हैं जी रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली जो हमारे दो रेगुलेटर्स जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, SEC की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली ये दो एंटिटीज जो हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, ये पीरियोडिकली अपने सर्कुलर, डायरेक्टिव, नोटिफिकेशंस जो है ये शेयर कर रहे होते हैं, ये इशू कर रहे होते हैं, जिनके बेसिस पे आप रूल्स रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं। सो ये ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट या दूसरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जब एक दफा आ जाते हैं तो उनके अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो काफी अर्से बाद होती हैं। तो इस दौरान अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई नया अमेंडमेंट करनी होती है कोई रूल के अंदर, तो वो सर्कुलर्स, डायरेक्टिव और नोटिफिकेशंस के थ्रू जो रेगुलेटर्स हैं वो करते हैं। उसके बाद जी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिजीम का एक लॉ का एक हिस्सा है। जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं उनको लिस्टिंग रेगुलेशंस और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, वो उनपे ये लिस्टिंग रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। उनपे कंपनीज एक्ट या उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। बट जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन पे ये एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है लिस्टिंग रेगुलेशन को। इसके अलावा फिर सिविल लॉज हो गए जो बेसिकली एनफोर्समेंट कराते हैं रिकवरी की और एनफोर्समेंट ऑफ क्लेम्स की। फिर क्रिमिनल लॉ हो गए फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रॉड, और फिर आखिर में जी नैब ऑर्डिनेंस हो गया फॉर कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन। जिसके बाद मजीद इसमें आते हैं कि इन 2002 SECP ने ICAP के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
पाकिस्तान के साथ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो डिजाइन किया था। कोड के इसके अलावा कोड के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं और जो लिस्टिंग रेगुलेशन और उसके अंदर अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं वो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को या SECP को जो है टेक्निकल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोग सब कर रहे होते हैं ताकि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनली चल रही हैं उनकी बेसिस पे उनके एग्जाम्पल को देखते हुए और लोकल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो इसके अंदर वक्त कर रहे होते हैं। अब हम अगर कोई क्वेश्चंस अगर आ गए हैं तो हम वो Sure, thank you, Awais. हमारे पास यूसुफ दारिया है। I hope यूसुफ दारिया आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। इन्होंने सवाल ये पूछा है, how can a private company owners can monitor the use of corporate governance in their company? This is a good question. Should I repeat it? Okay. How can a private company owners can monitor the use of corporate governance in their company? Okay, अब प्राइवेट कंपनी से इनका क्या मतलब है? like a public sector company, he's referring to a public sector company with or like private limited company, public limited company, इनका क्या मतलब क्या है? अगर हम ये बात करें कि okay, he means a public limited company, private limited company and a public limited company, उस पर बात कर रहे हैं तो जो लॉ है वो in terms of governance प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे इतना स्ट्रिजेंट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे उनकी काफी स्ट्रिजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे उनकी स्ट्रिजेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है और काफी रिक्वायरमेंट्स में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं। सो अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने उस पर इम्प्लीमेंट करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिन जो शेयर होल्डर्स या जो मैनेजमेंट चाह रही है कि हमने कोड को इम्प्लीमेंट करना, सबसे पहले तो आप उस कंपनी को, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसको आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी दो तरह की होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। सो जब आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, यू डोंट नीड टू गेट दैट कंपनी लिस्टेड, क्योंकि लिस्टिंग की तो बहुत सी लंबी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक बहुत मल्टीपल इश्यूज होते हैं उसके अंदर, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो जब आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो जो कोड है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी काफी सारी जो क्लॉजेस हैं उस पर वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो तरीका तो ये है कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करें। All right, thank you, Awais. I think we can move to the next question, which I have just received of Alfan Shah, and he's asking if you can please explain difference between circular and directives or notifications. Okay. बेसिकली जो सर्कुलर्स होते हैं, अगर आप SECP भी इशू करें या स्टेट बैंक भी इशू करें, सर्कुलर्स बेसिकली इंस्टेड ऑफ जो रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी इन रेगुलेटर्स ने इशू किए हुए होते हैं, उनकी कंजक्शन में वो सर्कुलर इशू होते हैं। यानी कि कोई ऐसा मैटर जो वो रेगुलेशन वो डिस्कस नहीं कर पा रही है या वो उसमें कवर नहीं हो रहा और उस पे रेगुलेटर समझता है कि ये चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए। सो वो जब उसको क्लैरिफाई करता है तो उसको सर्कुलर की फॉर्म में क्लैरिफाई करता है। तो वो जो सर्कुलर होते हैं वो एज गुड एज लॉ ही होते हैं, मींस के वो लॉ का पार्ट होते हैं और बेसिकली जो SECP है उसके पास पावर है टू इशू लॉ।
तो बेसिकली कंपनीज एक्ट भी जो है वो ऑल्दो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, लेकिन कंपनीज एक्ट की आई थिंक सेक्शन 165 है या 159 है, जो बेसिकली एससीसीपी को पावर देता है कि एससीसीपी कॉर्पोरेट लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है, कॉर्पोरेट लॉ को इशू कर सकती है। सो उस सेक्शन के तहत ये सर्कुलर्स जो हैं वो लॉ की अमेंडमेंट होती है या लॉ की क्लैरिफिकेशन होती है, एससीसीपी वो इशू करता है। नोटिफिकेशंस बेसिकली ये होते हैं कि किसी टॉपिक पे जो रेगुलेटर होता है उसको कोई चीज नोटिफाई करनी होती है कि जी ये अब ये अमेंडमेंट आ चुकी है, या ये कोई आप इसको ऐसा समझे कि अमेंडमेंट आ गई है या ये आगे बेसिकली, बल्कि नोटिफिकेशन ये होगा कि कोई लॉ अब जैसे कोड है, यस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 जब ये इशू हुआ तो बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन हुई है, नोटिफिकेशन के अब नया कोड इशू हो चुका है। जो जब कोई नई चीज इशू होती है, नया रेगुलेशन को इशू होगा तो उसकी नोटिफिकेशन जो होती है उसको इशुएंस होती है उसको नोटिफिकेशन या नोटिफाई करना पड़ता है। सो आई होप मैं एक्सप्लेन कर सही तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको मतलब समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप दोबारा क्वेश्चन कर लें ताकि मैं इसको फिर मजीद कोशिश करूंगा कि समझाने की। ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है सर्कुलर नोटिफिकेशंस के अंदर, बस टाइप्स अलग अलग होती हैं। Thank you, Aviz, and Yusuf Daria, आपका शुक्रिया अदा करते हैं because he was meaning to ask the same question जो आपने इसका रिस्पॉन्ड किया है प्राइवेट कंपनी के हवाले से। हमारे पास फरहान अब्बास हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, please discuss the significance of gender equality in board composition and how you look forward the presence of female directors in companies board of director in Pakistan. I think Farhan आपका सवाल बहुत अच्छा है, but if it's already in the presentation, हम इस पे डिस्कस करेंगे। Alright, so Farhan, please stay tuned. ये Aviz अपने further slides में टॉपिक डिस्कस करेंगे and hopefully your question will be responded there, right? Thank you. So we can move on to the presentation. Okay, जी, type of approaches to corporate governance. Okay, लेकिन दुनिया में दो टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, एक है रूल बेस्ड अप्रोच, एक है प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड अप्रोच यूएस में फॉलो की जाती है और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है वो यूके या वो कंट्रीज जो कॉमन लॉ को फॉलो करती हैं वो उसमें फॉलो की जाती है। रूल बेस्ड अप्रोच बेसिकली ये है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मुख्तलिफ सिनेरियोस की, वो सारी की सारी ये रूल्स के अंदर इनबिल्ट कर दी जाती हैं और आपको फिर वो सब सॉर्ट ऑफ टिक बॉक्स चीज होती है कि जी ये रूल भी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट आपने इंडिविजुअल सारी आप मेंशन करते हैं और फिर उसको आपको फॉलो करना है। ये रूल बेस्ड अप्रोच है। इसमें बात दफा ये जो फिर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ये होती है कि आप एक प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है आप एक रेगुलेशन बनाते हैं और उसको आपको कंप्लाई करना होता है। इसको आप ये भी कह लेंगे कंप्लाई और एक्सप्लेन वाला एक सिनेरियो होता है कि आपने एक जर्नल टर्म आपको दे दी, अब आपने उसको कंप्लाई करना है। उसके अंदर स्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि जी ये ही चीज आपको करनी है, और फिर आप उसको कंप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आपको रीजंस बतानी पड़ती है आप कंप्लाई कर सके। इसको मजीद चल के हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि जी ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, इसका मतलब कि कंप्लाई और एक्सप्लेन की क्या चीज समझ में आ रही है आपको, मतलब क्या इससे क्या बनता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच का।
एक तो यही कि जी क्लैरिटी होती है कि कंपनी को पता होता है कि जी उसने क्या करना है, ठीक है जी, और क्या नहीं करना। क्योंकि आपने हर तरह की जो चीज आपके उस वक्त आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, आपने उसको अपने लॉ का पार्ट बना दिया होता है। तो बाइंडिंग रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें ये जैसे आपको बताया कि जी इट मेक्स वेरी क्लियर दैट द रूल मस्ट बी कंप्लायंट। फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन ये होगी मतलब कि हर तरह की कंपनी, एक कंपनी बड़ी लिस्टेड कंपनी है, कंपनी छोटी लिस्टेड कंपनी है, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज आप सबको जो है वो रूल फॉलो करना ही करना है। और फिर आपका आ जाता है कि जी पेनल एक्शन होता है फॉर नॉन कंप्लायंस। ये तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है कि अगर आप रूल्स की अगर आप नॉन कंप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल एक्शन फ्रॉम द रेगुलेटर्स जो है वो तो एक नॉर्मल बात है। उसके बाद जी ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये है जी बिल्कुल जो एक कॉन्फिडेंस होता है। तो उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ गए जी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूल लूप होल्स। कोई भी रूल कोई भी रेगुलेशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, वो ऑब्वियसली इसी वजह से वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है। तो जैसे आप अगर आपने हर तरह के कोशिश की है कि हर तरह का रूल जो है आपने कोड के अंदर आपने इनबिल्ड करने की कोशिश की है, डेफिनेटली आप कुछ चीजें मिस कर जाएंगे या कोई ऐसी चीजें होगी जो आपने प्रॉपर तरीके से उसको रूल का पार्ट नहीं करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह के रूल को उसको एक्सप्लॉइट करती हैं और उसको एक्सप्लॉइट करती है। तो ये एक इशू होता है रूल बेस्ड अप्रोच का, सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती क्योंकि आपको कंप्लाई ही करना है। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जी ठीक है आपने कंप्लाई नहीं कर सके तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी पोजीशन कि जी मैं क्यों नहीं कंप्लाई कर सका। नहीं, आपने कंप्लाई करना ही करना। अब लॉ की कंप्लायंस के कॉस्ट होती है। अब वो कॉस्ट जो है वो अब आपको फिर बेयर करनी पड़ती है। छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली उसको बेयर करने में जरा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके फाइनेंशियल मसल इस काबिल नहीं होते कि वो उसको कंप्लाई कर सकें। बाकी बड़ी कंपनियां जो हैं वो तो ऑब्वियसली कंप्लाई, उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो उसको कंप्लाई कर सकती हैं। फिर जी चेकलिस्ट अप्रोच होती है, जिस तरह के आपसे कि आपने सिर्फ एक बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज होती है कि जी आपने ये करनी है। रेगुलेशन ओवरलोड, ऑब्वियसली रेगुलेशन ओवरलोड हो जाती हैं आजकल, जिस तरह रेगुलेशंस आ रही हैं AML CFT, और उसके अलावा कोड भी मजीद रिक्वायरमेंट्स जो मजीद टफ होती जा रही हैं। तो रेगुलेशन ओवरलोड जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लीगल कॉस्ट, ऑब्वियसली लीगल कॉस्ट भी होती है कि जब आप लूप होल्स जो हैं आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जो दूसरी कुछ कंपनीज होती हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट होती है। और एक आखिरी जो है जो लिमिट, that there is no room to improve or go beyond the minimum level set। इसके बाद अगर आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की तरफ अगर आए, तो जैसे मैंने कहा था पहला एडवांटेज इसका ये है कि जी बिकॉज द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑन द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ओन कंपनी, द रिपोर्ट शुड बी मोर मीनिंगफुल देन वन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स रिक्वायरमेंट। हर कंपनी जी दूसरी कंपनी से अलग होती है, इवन दो अगर वो एक ही सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो साइज उनका अलग होगा। जब साइज अलग होगा तो बास कंपनियों का जो रिक्वायरमेंट होती है टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड वो नहीं पूरी कर पा रही होती। तो जब वो अपनी कंप्लायंस की रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो उसके अंदर वो जब उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि जी आप अगर नहीं कंप्लाई कर सके किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कोड की रिक्वायरमेंट को, तो आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि जी हम ये रिक्वायरमेंट ये जो कंप्लायंस है क्यों नहीं कर पा रहे। फिर
practice can be changed much more easily than the statutory requirements. This means that the code can be updated to respond to the changing condition and changing expectation of the shareholders and other people. Flexibility अपनी जगह है, जिस तरह प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है उसके अंदर जो रूल बेस्ड अप्रोच है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती क्योंकि आप जब अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने की जो अपनी नॉन कंप्लायंस या जो आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे उसको एक्सप्लेन करने की पोजीशन में होते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि जी ठीक है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, और इसी वजह से ये जो 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 कोड जो होते हैं, जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो बने होते हैं, वो भी आराम से चेंज किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का जो मेन जो स्पिरिट है वो बेसिकली ये है कि जी आप कोड की उसका स्पिरिट को कंप्लाई करें, क्योंकि अगर रूल बेस्ड अप्रोच होती है उसके अंदर आप बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज होती है और बाज़ दफा आप ये लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके आप रूल तो कंप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसको उसके स्पिरिट को जो स्पिरिट था उस रेगुलेशन का या उस क्लॉज का आप उसको नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते। यहाँ पे मकसद ये कि आप प्रिंसिपल है उसको आप कंप्लाई करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो वही वाली चीज आ गई कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और अपनी पोजीशन बता रहे हो, तो आप ये बताएंगे कि जी हम कब उसको आगे फ्यूचर में उसको किस तरह कंप्लाई करेंगे। डिसएडवांटेज पे अगर आ जाए तो क्योंकि बात दफा ये होता है जब आपने अपना प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में जब आप ये बताएंगे अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि आप क्यों नहीं कंप्लाई कर पाए, तो एट टाइम्स जब आपके पास वैलिड रीजंस नहीं होते तो फिर आप मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स ही देते हैं कि जी हम इस वजह से नहीं कर पाए और उस वजह से नहीं कर पाए, बस वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स ही होती हैं। फिर एक और जो है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द डायरेक्टर टू सी वेदर दे हैव मेट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट आ जाता है, और सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ये है कि जब आपने ये कहा है कि जी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच आपने ऑप्ट की है, उसमें ये होता है कि जी आप अपनी जब स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा आप ये भी करते हैं कि आपकी चीज़ अगर कंप्लाई नहीं भी हो रही तो आप यू ट्राई के ना, और आप ये ट्राई करते हैं और कहते हैं इस तरीके से, उसको प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे ये कंप्लाई हो रही है। सो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की अगर आप बात करें, सो जो कोड की स्टेटमेंट होती है, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने किसी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट अगर देखे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, बेसिकली उसमें उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। उसमें एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर जिसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स उसके भी डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं जो कंपनीज एक्ट में आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और वो उसके हिसाब से ही उस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है टू शेयर होल्डर्स, एक ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है टू द शेयर होल्डर्स, जिसके अंदर उन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस की भी होती है कि क्या रिपोर्ट क्वालिफाइड है या प्लेन रिपोर्ट है। फिर फाइनेंशियल्स होते हैं। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी में एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है बेसिकली ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के तहत ही होती है। उसमें कोड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब की सब मैनेजमेंट जो होती है उसकी अगेंस्ट लिस्ट करती है कि जी ये रिक्वायरमेंट्स थी कोड की, हमने ये सारी फुलफिल की। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं
ऑब्वियसली आप उसको उसके हिसाब से बता रहे होते हैं। फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो नॉन मैंडेटरी होती हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं। तो जो कंपनीज होती हैं वो पूरी उस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में उन सब रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट अपने कमेंट्स देती हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने फुलफिल की हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने उनसे फुलफिल नहीं हो सकी, फिर कौन सी रिक्वायरमेंट्स जिन पे कंप्लाई और एक्सप्लेन वाली उसके अंदर आती हैं, कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो उसके अंदर अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हम ये कंप्लाई क्यों नहीं कर पाए और हम आगे इसको कब तक कंप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक एग्जांपल लें तो लॉ और कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहते हैं कि जी हर बोर्ड के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, which is 1/3 of the board strength or minimum of 2. So let's suppose साल के एंड होने से पहले एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, कैजुअल वैकेंसी बोर्ड पे क्रिएट हो गई। अब कंपनी जो है साल के एंड होने से पहले पहले एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर नहीं कर पाती है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस साल के एंड की बन रही होगी तो उसके अंदर कंपनी को ये मेंशन करना पड़ेगा कि जी हम ऑल्दो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो 1/3 है या मिनिमम 2 है, लेकिन हम इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पाए साल के आखिर पे बिकॉज कि हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया था। फिर आगे फिर वो एक्सप्लेन कर लेंगे कि जी हम डायरेक्टर को नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम ढूंढ रहे हैं, जैसे ही हमें कोई सुटेबल प्रोफाइल हमें मिलेगी हम उनको अपने बोर्ड पे टैग कर लेंगे। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन एक आ जाती है, एक स्टेटमेंट आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में कंपनी के लिहाज पे, और फिर ऑडिटर उस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के अगेंस्ट अपना एक एक एक, एक रिपोर्ट जो है जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को उसके जवाब में भी जमा कराता है, जो कि पार्ट होता है एनुअल अकाउंट्स का, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट ने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपना स्टाफ लिया होता है उस पे ऑडिटर अपना कमेंट देते हैं कि वो एग्री कर रहे हैं मैनेजमेंट से या एग्री नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सारी डिटेल जो होती है वो उस ऑडिटर की उस लेटर के अंदर मौजूद होती है, जो कि एनुअल अकाउंट्स का पार्ट होता है बाय लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। ये है जी दी टेनेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे आपका गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मॉडल है वो एस्टेब्लिश होते हैं और वो आगे चलता है। देखो कोई है क्वेश्चंस हैं तो हम ले लें या नॉट एट द मोमेंट। सो पहली चीज आ गई कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज एंड द सोसाइटी। ओके, ये ओके, जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट करता नहीं। बिजनेस जो है वो क्योंकि सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी डज गेट अफेक्टेड फ्रॉम द डिसीजंस व्हिच द बिजनेस टेक। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें या तो किसी में ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी की बात अगर हम करते हैं तो जब वो ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसकी अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सो एक एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कंपनीज जो होती हैं वो उस तरह इम्पैक्ट कर रही होती हैं सोसाइटी को
एनवायरनमेंट को। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और रेगुलेटर्स जो हैं इस सिलसिले में ख़ास तौर पे उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ता है। अब जैसा कि इस तरह के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ऑब्वियसली जैसे ही जब ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है। जब फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो कंपनीज को बिल्कुल प्रॉब्लम होती है उनको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल्स जो हैं वो उन पे इम्पैक्ट आएगा। इसमें जो जो शेयर होल्डर्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो ये रिलेशनशिप है उसको वो किस तरह तरीके से देखते हैं। आप जैसे देखेंगे कि अब खासतौर पर वेस्ट में जो एंड यूजर है वो बहुत ज्यादा इस चीज को वैल्यू देता है कि जो कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज को पे जोर देती है तो वहां पे वो जो एंड यूजर है वो उन कंपनीज को प्रेफर करता है कि हम अपनी जो भी लेन देन है या वो सब उस तरह की कंपनी से करें जिन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज जो हैं उनको ऑप्ट किया हुआ है। तो ये चीज जो है ये कंपनी की स्ट्रेटजी के अंदर इनबिल्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज से कंपनीज को ये इस चीज से कंपनी की जो 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 पॉलिसी है उस पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे कि आपको ये भी आइडिया है कि जी इस वक्त टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे होते हैं कि आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट उसको 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 आपको बहुत क्लोजली फॉलो अप करना पड़ रहा होता है। दूसरा आपने ये भी देखा है कि अभी जिस तरह इंटरनेशनली जिस तरह G8 कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि जी कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो बढ़ते जा रहे हैं उसको 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 रिड्यूस किया जाए। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही हैं और कंपनीज को अब अपनी जो पॉलिसीज हैं जो स्ट्रेटजीज हैं वो इन 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 एलिमेंट्स को देखते हुए बनाने पड़ेंगी और पड़ रही हैं। और रेगुलेटर्स जो हैं वो खास तौर पे अब इस चीज को पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं कि जो कंपनीज अपनी पॉलिसीज में और अपनी अपनी प्रोडक्शंस के अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं कर रही हैं उन पे अब फिर पेनल्टीज जो हैं वो इम्पोज होंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एलिमेंट है जो अनकरीब जो है हमारी खासतौर पर पाकिस्तान में अगर आप कहें तो इम्प्लीमेंट होने जाएगा। सेकेंड चीज पे हम डाइवर्सिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इस पे अगर हम बात करें तो बेसिकली डाइवर्सिटी और बैलेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ब्रॉड रेंज ऑफ आपके पास जो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाइवर्सिटी का मतलब ये होगा पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स
आपके बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। अब डिफरेंट बैकग्राउंड से बैठने का फायदा ये होता है कि अगर एक ही बैकग्राउंड के लोग बैठे हुए होंगे, अगर फाइनेंस के ही लोग सारे बैठे हुए हैं, तो अगर कोई इशू डिस्कस हो रहा होता है या उस पर डिसीजन लेना होता है, तो सब एक ही एंगल से उसको सोचेंगे। अगर आप डाइवर्सिटी की बात करते हो, तो अगर एक लॉयर बैठा हुआ है, एक आईटी एक्सपर्ट बैठा हुआ है, एक फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, तो वो सब जो है अपने अपने एंगल से, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को टेकअप करेंगे। सो जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो फिर डिफरेंट माइंड्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड वो उस प्रॉब्लम को या उस इशू को या उस मैटर को एनालाइज करते हैं, तो यू कम अप विद डिफरेंट आंसर्स। और जब आप डिफरेंट आंसर्स के हिसाब से उस बैकग्राउंड को, उस इश्यूज को टैकल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज है बैलेंस। बैलेंस में फर्क ये है कि जो जो लोग जो डाइवर्स जो आप इस तरह समझ लें आपके लाइक अभी जो एक क्वेश्चन में आया था कि बोर्ड में जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई। अब जेंडर इक्वालिटी, अब बोर्ड के अंदर सिर्फ सारे मर्द हज़रात ही बैठे हुए हैं, तो वहां वो बैलेंस नहीं है। फीमेल रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए उसके अंदर। अब हमारी टोटल पॉपुलेशन का अगर 50% खवातीन है और बोर्ड के अंदर लेट्स लाइक आपकी एक भी खातून नहीं है, तो वो एक बैलेंस जो है, बैलेंस बोर्ड नहीं है। रिसेंटली रेगुलेशंस के अंदर भी जो है वो जेंडर फीमेल रिप्रेजेंटेशन पे जोर दिया गया है। और जो डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती हैं, जो लैंडिंग एजेंसीज होती हैं या इस तरह की एजेंसीज होती हैं, वो खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को जो उनको अप्रोच करती हैं और उनसे असिस्टेंस चाह रही होती हैं, तो वो उनकी एक कुछ बात दफा ऐसा भी होता है कि उनकी एक कंडीशन होती है कि जी आपके बोर्ड में हमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए है। सो जो अगर हम बोर्ड की अगर बात करते हैं हम, सो बोर्ड डाइवर्सिफाई भी होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड जो है वो, अगर एक कंपनी का बोर्ड जो डाइवर्सिफाई और बैलेंस दोनों है, सो एक बहुत ही इफेक्टिव बोर्ड होगा वो, अगर उसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पे आए, जो कि है enabling an effective board. Okay, effective board. कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो उनको गवर्न जो होता है बोर्ड कर रहा होता है। अब बोर्ड के अंदर, इफेक्टिव बोर्ड के अंदर चेयरमैन का सबसे बड़ा रोल होता है। इफेक्टिव बोर्ड की सबसे पहली तो चीज ये होती है कि जी बोर्ड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। कंसंट्रेशन ऑफ पावर से मतलब ये है कि आपका लाइक चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और द सीईओ ऑफ द बोर्ड, वो इतना स्ट्रांग ना हो कि वो अपनी कोई आर्गुमेंट या कोई व्यू लेकर किसी इशू पे आता है, तो बाकी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो हैं वो उसको रिप्लाई ना करें या उसको आर्ग्यू ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली जो होते हैं वो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएंगे, जो जिनका कोई
कंपनी के साथ या बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आप कोई बिजनेस लिंक या कोई लिंक आप स्टैब्लिश ना कर सके बिजनेस पर्सपेक्टिव से। इसकी एक बड़ी लंबी डेफिनेशन है। बेसिकली प्रिंसिपल यही है कि जी आपका कोई मटेरियल लिंक नहीं होना चाहिए कंपनी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स के साथ। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट, उनकी कॉम्पिटेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक अफेक्टिव बोर्ड को एक अफेक्टिव बोर्ड में कन्वर्ट करने का। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने जो एक बोर्ड के लिए एक लिमिट्स उन्होंने रखी हैं, जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं 1/3 होने चाहिए, मिनिमम 2 एंड देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वो भी कम से कम 1/3 होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो बोर्ड में अगर डायरेक्टर की पोजीशन में होते हैं, मगर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं, मगर कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो होती है वो कंपनी के अंदर वो उनके पास नहीं। तो प्लस अब मिनिमम एक बोर्ड सीट जो है वो फीमेल को भी अलाउड कर दी गई है। तो कम से कम एक फीमेल रिप्रेजेंटेशनशिप होनी चाहिए बोर्ड लेवल पे। सो बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड में, जिस तरह की मैंने कहा आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर को देखा जा रहा होता है कि वो चेयरमैन के पास ये कहीं एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक इंडिविजुअल के पास वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है तो बोर्ड की इफेक्टिवनेस जो है वो इम्पेयर हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जो बोर्ड की जो ऑब्जेक्टिव होता है वो और जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ही होता है। डिफरेंस अब ये होता है कि बोर्ड का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जी कंपनी प्रॉस्पर करे। लेकिन जो बोर्ड का एम होता है, उनका जो होता है वो लॉन्ग टर्म विजन होता है, जबकि जो मैनेजमेंट होती है ऑफ द कंपनी वो डे टू डे जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उनका बास दफा वो लॉन्ग टर्म विजन या गोल नहीं हो पाता जो एक बोर्ड का होता है। सो बोर्ड इफेक्टिव बोर्ड का तरीकेकार ये होगा कि जी वो अपना गोल्स जो है लॉन्ग टर्म गोल्स वो सेट करे और फिर पीरियडिकली उनको रिव्यू करे कि जी जो गोल्स हैं इधर वो लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है या मिड टर्म गोल है, उनको कहाँ तक उन्होंने अचीव किया है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन की। एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन पे अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन में ये एक बहुत ट्रिकी एरिया है एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन। कोर्ट ने और कंपनीज एक्ट ने और रेगुलेटर्स ने जो इसको एड्रेस करने का जो सबसे पहला तरीका उन्होंने निकाला है वो ये कि जो भी रेम्यूनरेशन होगी बोर्ड की होगी या एग्जीक्यूटिव की होगी उसको आपने डिस्क्लोज करना है। सो जितने भी आप अगर देखें एनुअल अकाउंट्स किसी भी लिस्टेड कंपनी के उठा के देखें, इवन लिस्टेड कंपनी के अलावा भी आप अगर किसी भी पब्लिक कंपनी के आप अकाउंट्स उठा के देखते हैं, ऑल्दो अगर वो लिस्टेड नहीं है तो आप जो SECP का ऑफिस है लोकल वो शहर का, वहां पे आप जाएंगे तो वो आप से एक फीस होती है, वो फीस देके आप उनके अकाउंट ले सकते हैं। तो हर उनके अंदर आपको जो CEO, एग्जीक्यूटिव और बोर्ड, उन सब की रेम्यूनरेशन और बेनिफिट्स जो भी उन्होंने इस कंपनी से लिए होते हैं वो सब प्रॉपर डिस्क्लोज हुए होते हैं। सो सबसे
जो बेसिक जो जो पहला स्टेप है जो जो रेगुलेटर्स ने लिया कि वो डिस्क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन जो है उसको मेक श्योर किया जाता है और उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा होता है। तो दूसरा ये नोट किया गया है कि जो जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो डायरेक्टली लिंक होती है कंपनी की परफॉर्मेंस से। सो मैनेजमेंट को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे आप ESOP शेयर्स कहते हैं, कि जो आगे चल के 2-3 साल बाद जो जो कि उनको इशू होते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है वो एग्जीक्यूटिव को रेम्यूनरेट करने का। सो ये जो एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन है वो अगर जो पॉलिसी है या जो 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 प्रिंसिपल है, अगर तो वो लिंक है कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ, तो कंपनी बिल्कुल प्रॉपर करेगी, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। लास्ट चीज जो है जी वो है गेट कीपर ऑफ गवर्नेंस। गेट कीपर ऑफ गवर्नेंस में मतलब आ जाता है द रोल ऑफ रेगुलेटर। सो द रेगुलेटर का प्रॉब्लम, रेगुलेटर वो है जो ये सारी जो है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इशू कर रहा होता है। अब बात दफा प्रॉब्लम ये होती है कि रेगुलेटर को ऑब्वियसली इंडस्ट्री से ही सेलेक्ट किया जा रहा होता है। तो बात केसेस में ये होता है कि जब आप एक रेगुलेटर को इंडस्ट्री से सेलेक्ट करके उसको रेगुलेटर की पोजीशन दे देंगे, तो फिर वो रेगुलेटर कम बन जाता है और फिर इंडस्ट्री को ज्यादा फेवर कर रहा होता है। सो ये चीजें भी जो हैं वो बात प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। ओके जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोच इन पाकिस्तान पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली 2019 के अंदर नया कोड SECP ने इशू किया है, जो कि 2017 को उसने को रिप्लेस किया है। ये जैसे कि आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, ये कंप्लाई और एक्सप्लेन ये अप्रोच पे है, जिसके अंदर बेसिकली आपको ये डिस्कस करना है कि आपने अगर कंप्लाई किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप, जिस तरह मैंने आपसे पहले एग्जांपल कोट की थी, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे उसको कि आपकी जो सिचुएशन है उसको आपने कंप्लाई क्यों नहीं कर पाए। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑन डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और ऑडिटर्स। सबसे पहले मैं ऑडिटर्स को ले लेता हूँ। देखिए कोड के अंदर और लॉ के अंदर ऑडिटर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट है। उस सिलसिले में कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, हर 3 साल 5 साल बाद आपने ऑडिटर को चेंज करना है। ये एक बहुत बड़ा मेजर है जो कि कंपनीज जो है फॉलो कर रही होती हैं। अब रिसेंटली इसको चेंज करके इसमें बड़ी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। अब इन्होंने ये 19 के अंदर कोड के अंदर ये है कि जी अब 5 साल बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ऑडिटर को चेंज ना करें, आप एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज करें। फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है ऑडिटर्स की। बेसिकली साल का आप ऑडिट कराते हैं, जो लिस्टेड कंपनी होती हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हाफ ईयरली रिव्यू भी कराना होता है ऑडिटर से। तो ऑडिट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गई है कि ऑडिटर जो होता है वो कोड के ऊपर आपकी जो आपने कोड पे अपना एक स्टेटमेंट दी है उसकी वो उसके अगेंस्ट वो अपना कंप्लायंस स्टेटमेंट अपना रिव्यू रिपोर्ट जमा करा रहा था, जिससे मैं बताता है कि जी वो आपने जो स्टेटमेंट दी उसपे वो उससे किस हद तक वो उससे एग्री करता है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं सी लेवल पोजीशंस पे, CFO, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ कंट्रोल ऑडिट। पहले ये होता था कि ये पोजीशंस जो होती थी वो डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को रिपोर्ट कर रही होती थी। अब कोड के अंदर और लॉ के अंदर इन पोजीशंस को ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई है, और अब ये पोजीशंस जो हैं वो आइदर
बोर्ड को रिपोर्ट कर रही होती हैं या चेयरमैन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रही होती है, जिससे लोकल मैनेजमेंट का इन पोजीशंस पे इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया है। और मकसद भी यही था कि पहले सीईओ सीएफओ को या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को कहता था कि जी आपने ये काम करना है, और वो काम सही नहीं होता था तो सीएफओ क्योंकि रिपोर्टिंग ही उसको होती थी तो उसको माननी पड़ती थी उसकी बात। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्टिंग बोर्ड को है तो सीएफओ की या कंपनी सेक्रेटरी की, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की, चेयरमैन ऑडिट कमेटी को होती है, तो वो अब सीईओ जो है या कोई और पोजीशन जो है कंपनी की, वो उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जिस तरह पहले कर सकती। ओके जी, डायरेक्टर्स पर अगर हम आते हैं तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लॉ बिल्कुल डिफाइन करता है, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो डायरेक्टर्स पे होती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही डायरेक्टर पे है, अपार्ट फ्रॉम द सीईओ एंड सीएफओ की पोजीशन के अलावा बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स पे होती है। और एसईसी की हो या स्टेट बैंक हो, जब भी किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टर की पोजीशन अलाउ करता है तो स्पेसिफिकली वो मेंशन भी कर रहे होते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉ के अंदर दोबारा पढ़ के उसको उस पर अपनी क्लैरिटी जो है वो कंफर्म करें। एजेंसी रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स के साथ एक एजेंसी रिलेशनशिप होती है। डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं। लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ बोर्ड सीट्स। ओके, पहले एक रिक्वायरमेंट, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नॉट मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड पे साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। अब सिर्फ 7 कंपनीज के बोर्ड पे ही हो सकते हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। अदरवाइज ये है कि बहुत सारी बोर्ड पे, कंपनी के बोर्ड पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट ले लेते हैं, लेकिन आप टाइम जस्टिफाई नहीं कर पाते। ऑलरेडी मैंने आपसे बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फीमेल डायरेक्टर्स की बोर्ड में अब सीट्स जो है वो मिनिमम सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है, और कंपनी को उसको कंप्लाई करना है। बोर्ड परफॉर्मेंस एंड रेम्यूनरेशन, ये टॉपिक है जिसके अंदर बेसिकली बोर्ड की जो भी साल की परफॉर्मेंस होती है वो उसको इवेल्युएट किया जाता है और उसको रिकॉर्ड पे रखा जाता है, ताकि पता चल सके कौन सा बोर्ड मेंबर की क्या परफॉर्मेंस रही है, चेयरमैन की क्या परफॉर्मेंस रही है। बोर्ड कमेटीज, ओके, ऑडिट कमेटी, बोर्ड एचआर कमेटी और रिस्क कमेटी, ये 3 एटलीस्ट वो कमेटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है बाय लॉ। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बिजनेस के कर रही होती हैं, और फिर बोर्ड को जो भी अपनी बिजनेस है, जो भी चीजें डिस्कस कर रही होती हैं उनको फिर अपडेट करती है। ऑडिट कमेटी का मेन काम ऑब्वियसली अकाउंट्स की अप्रूवल ही भी है, अप्रूवल नहीं, रिकमेंडेशन टू दी बोर्ड फॉर अप्रूवल बेसिकली। और इसके अलावा अलग पूरा इस ऑडिट कमेटी के एक चार्टर है जो आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डिफाइन हुआ है। डायरेक्टर्स ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ये इस पे भी रेगुलेटर बहुत एम्फसाइज करते हैं, डायरेक्टर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूस ट्रेनिंग होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्टेड कंपनीज के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एटलीस्ट क्वार्टरली मीटिंग जो है वो लॉ ने रखी हुई है, जिसकी बेसिस पे क्वार्टरली वो मीटिंग होगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्कस होंगे, अप्रूव होंगे। उसके अलावा जो और रूटीन के मैटर्स हैं वो उसमें वो देखेंगे। इसके साथ जी हमारा प्रेजेंटेशन एंड हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है प्लीज। Sure, Nafees. Thank you so much once again. Would you like to take जो gender equality question अगर मैं आपसे शेयर करूं? जी जी। फरहान अब्बास ने पूछा है कि please discuss the significance of gender equality in board composition and how you look forward, how we should ensure. He's trying to ask कि जो overall female directors की presence है कंपनी के board of directors का वो कैसे इंश्योर करनी चाहिए along with significance तो आपने शेयर कर ली है। तो
जो प्रेजेंस है वो भी ऑब्वियसली लॉ ने खुद अब इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है और उन्होंने एक फीमेल सीट रिजर्व कर दी है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया जिस तरह के ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, डोनर एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल एड देते हैं या ग्रांट देते हैं, उनकी तरफ से भी अब एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी फीमेल रिप्रेजेंटेशनशिप बोर्ड पे होनी चाहिए। कंपनीज जो लोन ले रही होती हैं उनकी जब वो स्कोरिंग कर रहे होते हैं तो फीमेल रिप्रेजेंटेशनशिप ऑन द बोर्ड के अलग मार्क्स होते हैं। तो जो मार्क्स ऑब्वियसली वो मार्क्स जो होते हैं वो उनको फाइनेंसिंग अवेल करने में ऑब्वियसली मदद करते हैं। सो इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं इंटरनेशनली और लोकली भी ताकि ये प्रेजेंस जो है वो। थैंक यू अवेज एंड आई थिंक एसपीएल के स्टूडेंट्स को ये जरूर नोट करना चाहिए कहीं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्किंग या फिर इंटीग्रेटेड केस स्टडी एसबीएम में कहीं आप नोटिस करते हैं केस के अंदर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई फीमेल नहीं, यू कैन आल्सो मेक अ रिकमेंडेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। Okay, so now we have two more questions. What basis we use in Pakistan? Amara Samu पूछ रही है हमसे. Is it rule based or principle based? This is principle based, like comply and explain or explain. Right. Usually पाकिस्तान में अगर आप बात करें क्योंकि हम लोग यूके की कॉलोनी थे तो हम लोगों ने भी हमारा जो लॉ है वो ही हम फॉलो कर रहे हैं, कॉमन लॉ हम फॉलो करते हैं। सो यूजुअली जो प्रैक्टिसेस यूके के अंदर होती हैं वो ही हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। Okay. So this is basically principle based, yeah, principle based. Okay, that's good. Amara हमसे further पूछ रही है कि what is the future of corporate governance? How do you see it as a leadership position occupying the organization where you're working? What are trends you are seeing, requirements? How do you see it? I think overall ये पूछना चाह रही है कि corporate governance का क्या scope है? लेकिन corporate governance का obviously scope जो है वो मजीद बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आपका चीजें इवॉल्व हो रही हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मजीद बेहतरी आती जा रही है। इवन आप अगर आप FATF की अगर बात करते हैं तो FATF की जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर हमारे रेगुलेटर्स के ऊपर, उसकी बेसिस इवन जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उस प्रेशर को अब फील कर रहे हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं वो जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं पर्टेनिंग टू FATF कर लें। फिलहाल अगर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तो वो इस तरह वो इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कोई आपको रिलैक्सेशन देंगे ही नहीं। यू हैव टू कंप्लाई with these rules regulations जो ऑलरेडी इस वक्त इम्प्लीमेंट हुए हैं। सो बिल्कुल कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका स्कोप बिल्कुल बढ़ेगा और फ्यूचर के अंदर जो रेगुलेटर है वो इसकी अभी इस वक्त वो नॉन कंप्लायंस पे शो कॉज दे देते हैं या एनफोर्स कराने की कोशिश कर रहे होते हैं सिर्फ लाइक थ्रू नॉर्मल वार्निंग्स। इन फ्यूचर तीन इलेक्शंस होंगे, पेनल्टीज होंगी, अभी भी पड़ रही हैं लेकिन आगे जाके और मजीद सीवियर हो जाएंगी। Thank you very much, and I think with this fact कि corporate governance का scope आगे भी बढ़ जाएगा और कानूनी तौर पे भी उसको जरूरी बना रहे हैं, and that's the main reason why ACCA has incorporated this element in detailing the SPL syllabus. That's the reason. Obviously, we don't have any more questions at the moment. All questions you have kindly answered. और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको elaborate किया है. So basically this brings us to the conclusion of today's webinar. Any words of wisdom if you want to add on to the students जो कि पाकिस्तान में SBL पढ़ रहे हैं, of course exams देंगे मार्च में या जून में या कभी भी 2020 के अंदर. Any words of wisdom from your end?
जी देखिए, जब भी आप ये प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स अगर एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो उसमें खास तौर पे जब ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, सो जो एग्जामिनर होता है वो ऑब्वियस वो आपकी जजमेंट को बेसिकली वो देख रहा होता है। इसमें मैंने भी ये पेपर दिए हैं, हम लोग यूजुअली सब रट्टे मार के जा रहे होते हैं, मगर बात ये होती है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप बैठते हैं, जब एग्जाम पेपर देखते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको सामने वो शेयर करता है। सो ये रट्टे नहीं चलते हैं वहाँ पे। आपको अपने आप को जो उसको रिप्लाई है या आप जो जवाब देंगे, आपको उसको आप ये समझ लेंगे कि अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही बात करते हैं, तो कोई अगर सवाल आता है तो फिर आप उसमें यही देखेंगे कि उस सवाल के अंदर अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि जी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड है तो आप देखेंगे जी पावर कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो नहीं है, डायरेक्टर्स की कोई कोई लिंक तो नहीं है, बायसनेस तो नहीं है। इस तरह की चीजें बेसिकली आप प्रैक्टिकल सिनेरियो ही आप अगर देख के आप उसमें एक्सप्लेन कर सकेंगे तो वो होगा। आप जो बुकिश नॉलेज है वो तो आपको 4-5 चीजें बता देंगे, लेकिन आई डोंट सी कि वो हर प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर फिट होती है कि नहीं। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बाकी ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से वो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स पेपर प्रोफेशनल लेवल का दे रहे होते हैं, उनका या तो वो एक्सपीरियंस इतना होता नहीं क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या वो अभी सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली ज्वाइन किया है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उसको ये सारी चीजें वहां लगा के देखेंगे कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन उसको उसको अडॉप्ट कर रही है, या उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही, तो क्या एक्सक्यूज है उसके पास। ये इस तरह की चीज अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करके देखेंगे तो आपके लिए पेपर पास करना बड़ा ही आसान, रिलेटिवली आसान हो जाएगा। बड़ा आसान तो नहीं होगा, लेकिन रिलेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इन चीजों को कंपनीज के अंदर फिट करके देख रहे हैं। Right. So, with this last words of wisdom and piece of admonishment advice from Awais, I sincerely extend my thanks to Awais for your time and आपने session को you have tried your best, and I think आपने बहुत excellent तरीके से practically इस topic को discuss किया है, बच्चों को insight दी है. For that, we really humbly say thanks to you on behalf of ACC Pakistan. And those students who are going to attempt SBL examination March session, you have all the best from our ends, and please do share the information about this session. इसको मज़ीद जितना भी आप cascade down कर सकते हैं, promote कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। इसकी recording session की हो रही है और ये recording आपको कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगी वीडियो चैनल पे, those who are aware of the video channel, but ये आपको email भी की जाएगी those who have registered for these webinars. So please अपने फ्रेंड्स के साथ जो SBL पढ़ रहे हैं जरूर उसको शेयर करें, disseminate करें, the more the merrier, and I hope you have all the best for the examination. But once again, thank you very much, Awais. Thank you so much, and good luck for the examination in March. Thank you, Allah Hafiz.